Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and I welcome you all and I say a good morning to all. So, from today, we are going to proceed further to the basics of communication skills. And before proceeding towards communication skills, first we have to learn what is communication, what are the forms of communication. So, right now we are going to talk about forms of communication and let's talk about it. So, you can look at the slide. Father is working on PC and a daughter is talking about a dress. Daddy, look what I made. So, instead of looking at that, father said, keep on talking, I am listening. So look that the daughter wanted to see, the daughter basically wanted him to see something. ठीक है, उसने कहा इधर देखो, यानी कि she wanted a verbal communication and instead of she wanted a non-verbal communication, means to see, to look at anything, and instead of looking at anything, the father started working on his PC and said, keep on talking, I am listening. ठीक है, यानी कि उसने नॉन वर्बल में उसने वर्बल में आगे से जवाब दिया कि आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ. सो बजाय इसके कि वो देखे. सो रिस्पॉन्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि बाप ने क्या रिस्पॉन्स दिया. सो दो तरह की कम्युनिकेशन आपने यहाँ पे होते हुए देखी. बेटी ने कहा देखो इधर, बाप ने देखने की बजाय उसको कहा कि तुम बोलते जाओ. सो नाउ we are going to talk about this type of communication. Basically, communication is what? First, we need to know it. We'll have a recap on it. We have to discuss it. That what is our communication? So we say that what is a communication? Basically, it is about passing information from one person to another, and it comes in many forms. At the screen, you can look at different forms of communication, and like here at one side, hi Charles, what's up? I'm very well, Barney, thank you. So this is verbal communication. They are talking to each other. They are writing, a person is writing a letter to his boss, but on the other hand, a man is holding the hand of a lady, and that is a non-verbal communication. So verbal is always written, whereas non-verbal is visual. So there are different modes of communication, that how we have to communicate with our fellow beings, how we have to talk with them. So we have to adopt a specific form of communication. So you can look at the slides, you can look at the presentation, that how they are communicating. So we have to keep on adding the members also. Okay, so how they are looking at the communication. So look at the presentation. Okay, so oral, listening or hearing, non-verbal, facial expressions, body language and posture, communication. So written, like journals, emails, blogs, text messages, verbal, visual, these are different types of communication. राइट साइड पे मैंने आपको दिखाई है कि इस तरीके से, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप दूसरे से बात करते हैं. आम तौर पे हम ये समझते हैं कि सिर्फ लिख के बात की जाती है. सो लिखने के अलावा भी और से बहुत से मोड्स हैं. बोल के भी बताया जा सकता है, चेहरे के एक्सप्रेशन से बताया जा सकता है, लिबास से बताया जा सकता है, आप अपनी हरकत से बताते हैं, हाथों के एक्सप्रेशन से बताते हैं. ठीक है, आप अपनी आइज़ के ज़रिए बताते हैं, आप अपने बिहेवियर के ज़रिए बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. आपने देखा होगा कि जब यूनाइटेड नेशंस का जब वो इजलास होता है, उसमें जब पाकिस्तान और इंडिया के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, जब वो विज़िट पे जाते हैं, तो उनके लिबास पे, उनके हाथ मिलाने पे, उनके एक दूसरे को देखने पे बड़ा ज़्यादा वो उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि किस तरह ये आपस में बात करें.
ये यानी कि ये लिबास कौन सा पहन के गया, लिबास क्या इंडिकेट कर रहा होता है। अच्छा, इसने उसको हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, अगर हाथ मिलाया तो क्या एक्सप्रेशन लिया जाएगा, अगर हाथ मिला के हिलाया तो क्या एक्सप्रेशन लिया जाएगा। अच्छा, हाथ मिलाया और साथ में जप्पी भी डाली तो उससे क्या एक्सप्रेशन, पहले जप्पी डाली बाद में जप्पी डाली। सो दीज आर वर्बल कम्युनिकेशंस, सॉरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ठीक है, इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं जाते हैं तो वो उनको इशारा करते हैं बैठे या इस तरह, वो दीज आर ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कि मुंह से बोलने की बजाय आप सारे हिला के या किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसकी इन दोनों काइंड्स को डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना, ऑडिबल हूँ ना मैं आप सबको, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, आवाज़ भी आ ओके। ओके अभी ओके ओके। सो अभी जो है ना ये पढ़ना है, ये स्लाइड पढ़नी है नगीना ने। ठीक है नगीना, कैन यू लुक एट द स्लाइड, इफ़ यू कैन लुक एट द स्लाइड प्लीज़ रीड इट आउट। ठीक है, जहाँ बताऊंगा वहाँ रुकना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। स्लाइड आपको नज़र आ हाँ नज़र आ रही है ना स्लाइड? ओके ओके, रीड आउट। ओके Verbal and non-verbal communication. यस When an infant cries, it is verbal communication. However, the parent or caregiver may not exactly figure out what the infant problem is. But can discern quite quickly baby is communicating, I am unhappy or uncomfortable, hungry, lonely, or fearful. just hold on here. You can look at your own surrounding, babies at your home, when they are feeling any problem, so they cry, they weep, they cry loudly। ठीक है, उस सिचुएशन दे डू नॉट टॉक, बल्कि वो अपनी उस चीखो पुकार से बताते हैं कि उनको क्या मसला है। ठीक है, तो वहाँ से हमें वो दैट इज़ व्हाट अ कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Although a smile is non-verbal communication, universally everyone knows what messages it is usually conveying. One may not understand the language of another, however, smile is still a welcoming Just from okay, okay. non-verbal Hold on, hold on. communication. When a baby is crying, and he's basically verbally telling us that what is the problem with him or her. But there is a non-verbal communication. Somebody smiles, and universally we know that smile is having a similar meanings in all the cultures, in all the countries, in most of the parts of the world। ठीक है, स्माइल से एक ही मैसेज कन्वे होता है, बट बाज़ दफ़ा जो जेस्चर्स होते हैं, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है, वो मैसेजेस भी कल्चरली डिफरेंट होते हैं। चलें आगे पढ़ें। It is the same thing weeping, although we may not know what a person of a different language is crying. Unless we know firsthand the problem, however, we know from the person's sadness they are communicating non-verbal physical or emotional pain, disappointment, anguish, grief, fear, or loss. ठीक है, Verbal communication is okay straightforward. okay, just hold on, just hold on। I'm talking to you and you people are listening to me। This is one form of communication, that is verbal communication, and in verbal one is oral and other is written communication। ठीक है, orally या लिख के या बोल के आपको के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है ना, दैट इज़ नॉन वर्बल। सो इफ़ यू लुक अप, इसके अलावा एक तीसरी भी है, यानी कि आप उसके ज़रिए सिंबल्स के ज़रिए भी बताते हैं, लेकिन पिक्चर्स के जरिए, सिंबल्स के जरिए, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हम सिर्फ दो के बारे में बात करें, रिटन और स्पोकन, जो कि इंसान जो प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ अगर आप देखें, देयर इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड उसकी चीखों पुकार से, उसकी क्राई से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको इमोशनल पेन है, एंग्विश है, ग्रीफ है, क्या है। वो अपनी सैडनेस को कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, इफ़ समबॉडी इज़ वीपिंग एट द लॉस, यू विल कम टू नो कि इसको ग्रीफ है। और बाज़ दफ़ा आप खुशी में भी रो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब खुशी, इंसान खुश होता है, ऐसे हालात होते हैं तो उस वक्त भी आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, कोई याद आ जाता है, या वैसे इंसान खुशी से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ओके, प्लीज़ रीड नेक्स्ट लाइन्स। Verbal communication is straightforward. You instantly know
what the other person is thinking and voicing. Verbal communication means conveying a message directly from one human to another. However, just So, like non-verbal communication, so in verbal communication, we directly convey the message. We directly convey the message. In non-verbal communication, we do not convey the message. Basically, that is that it is accompanied by a verbal communication. Verbal के साथ non-verbal चल रही होती है क्योंकि इसमें emotions वगैरह चल रहे होते हैं ना. ठीक है, आगे. verbal communication means conveying a message directly from one human to another. However, just like non-verbal communication, emotions will accompany the verbal communication. When sign language is used, it is a form of non-verbal communication. Yet the communication becomes just as understood as verbal, provided the listener understands sign language. Yes, normally we think that sign language is non-verbal communication, but it becomes verbal when the listener understands sign languages. Signs के जरिए आपने वो सुना है, वो सीटियों के जरिए किसी जगह पे वो एक वीडियो चल रही होती है, वो बुला रहे थे, सीटियों के जरिए बताता है खाना मंगवाते हैं, अच्छा हम काम ख़त्म कर रहे हैं, खाना तैयार है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन. ठीक है, उस तरीके से भी किया जाता है ना. सो तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं इंसानों के दरमियान, लेकिन वो शेयर्ड होते हैं. बेसिकली कम्युनिकेट लिसनर और स्पीकर आपस में शेयर कर रहे होते हैं. बात मकसद क्या, मैसेज को कन्वे करना. हमने पहले भी बात की थी कम्युनिकेशन में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द मैसेज एंड हाउ योर मैसेज इज़ कन्वेड टू द रिसीवर. ठीक है, प्रोड्यूसर किस तरह अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है. ओके, सो आगे पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए. Body language is a non-verbal form of communication. While speaking verbally to another, a person's stance says much in a non-verbal way. The folding of the arms can communicate distance, disbelief, defiance, and annoyance. The folding of the hands from fingertip to fingertip can indicate confidence. Yes, these are different ways that how we communicate, whether verbally or non-verbally. सो वर्बल में आपने बोल के किया, बच्चे इस तरह करते हैं. अब घर में अगर फॉर एग्जांपल कोई नाराज़ हो ना, तो उसके चेहरे से आपको पता चलता है कि यार इसका मुंह जो है वो बना हुआ है, इसका मुंह लटका हुआ है. सो दैट लटका हुआ मुंह इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन इज एंग्री और दिस पर्सन इज वरीड, वट एवर. ओके, so now let's talk about first we talk about verbal communication. So you can look at the slide. Basically, in verbal communication we use words to share information with other people, whether these words are in written form or these words are in spoken form, oral form. So we have to describe our words orally to communicate, verbally to communicate. ठीक है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है वो इसको ओरल फॉर्म में ही बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं. रिटन फॉर्म जो है उसमें यानी जितना हमारे इस दुनिया के अंदर जितनी कम्युनिकेशन हो रही है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ ओरल. ठीक है, रिटन बहुत कम होती है, यानी कि वो आप उसका स्पेस देखें ना, जितना हम बोलते हैं उतना हम लिखते नहीं हैं आम हालात में भी. ओके, यस. उसके बाद इसमें वर्बल एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन का, वो क्या है कि आप अल्फाज कौन से सिलेक्ट करते हैं, किस तरह उन्हें लोग सुनते हैं और किस तरह उन्हें समझा जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, हाउ यू यूज़ द वर्ड्स. ठीक है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कहाँ पे इस्तेमाल किए गए, सुनने वाले को ने क्या सुना और उसने फिर उसको इंटरप्रेट किया कि उसने क्या, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दोज वर्ड्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because message is important. What I spoke, what I wrote, that should be conveyed the way I wanted to tell to the receiver. ठीक है, वही process है, two-way process है, and ultimately the feedback will tell me that whether my verbal communication was successful or not. So there is another type of verbal. So now we are going to talk about verbal communications, kinds of verbal communication. As I've told you earlier that there are two major kinds of verbal communication. The first one is oral communication
and that is produced through mouth. It is based on direct conversation, whether it is face to face or it is telephonic conversation. Oral communication is available in the form of speeches, presentations, group discussions. These are presented in the form of oral communication. बोल के सारा काम किया जाता है, तकरीरें होती हैं, presentation होती है. So when a matter is of a temporary kind, we go for oral communication. Means when we are going to directly, we are going to interact with the people, then definitely we have to follow oral communication. Like face-to-face communication, meetings, lectures, conferences, interviews. These are all the things which are necessary to be dealt in oral communication. इंटरव्यू कभी भी रिटन फॉर्म में नहीं होता है, मीटिंग्स रिटन फॉर्म में नहीं होती, कॉन्फ्रेंसेस रिटन फॉर्म में नहीं होती, बिकॉज आप अपना मैसेज डायरेक्टली लोगों को बताना चाहते हैं. So it is quite significant to build a rapport and trust when you are going to orally communicate with people. ठीक है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो दो तरीकों से आप कम्युनिकेट करते हैं. इदारे के अंदर वर्बली आप दो तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं. या आप सुबह मॉर्निंग में असेंबली होती है, आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं साथ आपके, यू टॉक टू देम in the morning assembly or in a meeting, you conduct a meeting and you talk to them, you deliver lectures, you conduct interviews, you attend conferences. So you talk to them orally, you communicate with them, and because it is a matter of you can say temporary kind, वहीं आपने सुबह खड़े होकर सब कुछ बताना है. But when you are going to document anything, then you have to apply written communication. आप फिर oral communication पे नहीं जाएंगे, written communication को आप फॉलो करेंगे. ठीक है, आपने orally बताया, खड़े खड़े बता दिया, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी करते हैं वो ओरली नहीं करती, वो आपको फ़ोन पे बताते नहीं हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑफ अ टेम्पररी काइंड. किसी ने बताया, आपने सुना, सुनने में कोई मसला हुआ, बल्कि दे राइट टू यू वाया ईमेल्स, वाया नोटिफिकेशंस, वाया नोटिसेस, वाया एडवर्टीजमेंट्स. सो मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए आपको बताया जाता है रिटन फॉर्म में कि आपको रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, एग्ज़ाम्स के शेड्यूल्स, जो भी चीज़ें वो आपको रिटन फॉर्म में बताई जाती हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ अ टेम्परेरी काइंड. Even our lectures, as I'm delivering a lecture to you, but apart from delivering a lecture, as I'm talking to you, that is of a temporary kind, but I'm also providing you a written material in the form of presentation slides. So when you read the slides, you are getting what I say written communication. ठीक है, written material आपको मिला, written information मिली है, that is not of a temporary kind, that is of a permanent kind. When you are going to prepare for your exams, you have to look at those slides कि इसमें क्या लिखा हुआ और क्या नहीं लिखा हुआ, ये तरीक़ेकार है. सो ओरल कम्युनिकेशन में होता क्या है बेसिकली, मतलब किस किस तरह की होती हैं. सो लेट्स लुक एट दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो as oral communication is a process of verbally transmitting information of and ideas from one individual or group to another. एक तो ये कि इंफॉर्मेशन वर्बली, इसमें क्या होता है, और ओरल में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे की जानिब, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ होता है. अब ये कब होती है? जब टेम्परेरी का है, डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत है, और आपने यू आर गोइंग टू बिल्ड अ रैपिड एंड ट्रस्ट. ठीक है, यानी कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक वो ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, रैपिड बिल्ड करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, सो यू नीड टू ऑरली कम्युनिकेट विद दैम. ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, ख़ुद बात करेंगे. सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एज इट इज़ इंटरपर्सनल. ठीक है, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऑरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली इट विल कंटेन अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज it is interpersonal. I'm talking to you, you are replying to me, you're asking me questions, so ultimately understanding will be enhanced. So apart from enhancing the understanding, क्या होगा,
फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। हम वी आर प्लानिंग सम थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वी आर प्लानिंग शेड्यूल्स, वी आर प्लानिंग आर एग्जाम्स, वी आर प्लानिंग आर क्लासेस, वी आर प्लानिंग क्विजेज, डिस्कशन होती है तो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है जी, अभी नहीं रखते तो कल रख लेते हैं, कल नहीं तो परसों रख लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। So definitely we get a spontaneous feedback. So ultimately our decisions are quick. So there is no delay in decisions. So meetings के अंदर ये सारी oral communication इसीलिए होती है कि वहीं decisions लिए जाते हैं. As we are in right now we are in Google Meet and we are conducting a class. Even in this class भी feedback में क्या होता है, फ़ौरन आप feedback देते हैं। ऐसा नहीं होता मैंने आपको मैसेज किया 2 घंटे के बाद आप जवाब देंगे। And it saves time and money. Best in case of problem resolution as the conflicts, disputes and many issues and differences can be put to an end by talking them over. मैं भी इस पे एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। टीम वर्क के लिए अच्छा होता है, ग्रुप एनर्जी इसमें इन्हांस होती है, प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैटर्स आप इस तरीके से आप वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए आप आसानी से आप उनको कन्वे कर सकते हैं। सो let me tell you, let me share one experience with you here. If you are going to, if you are facing any problem related to your study, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम है किसी चीज़ पे, कम्युनिकेशन के ऊपर ही आपके पास प्रॉब्लम है, आप मुझे टेक्स्ट करते हैं, आप टेक्स्ट करते हैं कि सर मुझे बताएं कि ये ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है और इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, इसके एडवांटेजेस कौन से। आप एक 2 लाइन में एक सेंटेंस में काइंड्स भी बताएं, ये चीज़ें भी बताएं। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर आप दूसरी बात पूछते हैं, फिर मैं वो बताता हूँ, फिर तीसरी बात पूछते हैं, फिर मैं एट द एंड टाइम ज़्यादा लगता है और आखिर में क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि whether you fail to understand or I fail to communicate, because कि यहाँ पे क्या स्पॉन्टेनियस फीडबैक लेते हुए टाइम कितना सुबह से लगा हूँ शाम तक मैंने ओरल और रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हुए मैंने इतना टाइम कंज्यूम कर लिया कि मैंने वो जो 1 घंटे का लेक्चर था इट टुक 3 to 4 hours टू एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज वी वर प्लेइंग टेक्सटिंग एंड टेक्सटिंग। ठीक है, टेक्स्ट की सूरत में हम खेल रहे थे, हमारा टाइम ही बहुत ज़्यादा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता चला। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स से कि आप बेटा आप टाइम लो, कांटेक्ट करो, मैसेज करो, टाइम लो कि सर मैंने यह चीज़ पूछनी है, एंड देन टॉक टू योर टीचर, डोंट टेक्स्ट हिम। आप टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट में क्या होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा या आपके पास टाइम नहीं होगा, सो खेलते रहेंगे बैठ के, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, दैट इट सेव्स योर टाइम एंड मनी, दोनों चीज़ें इसमें बच जाती हैं। मनी किस तरह बचती है, टाइम तो बचता है कि ठीक है आपने थोड़े टाइम, मनी इस तरह बचती है कि पहले आप लिखेंगे, ठीक है, जितना टाइम आपने लगाया लिखने पे दूसरे बंदे ने पढ़ने पे लगाया, अब उस टाइम पे आप कोई और काम भी कर सकते। 3 घंटे आपने लगाया एक चीज़ लिखने पे, जबकि वही बात आप एक्सप्लेन कर उर्दू उसमें ओरली कम्युनिकेट करते हुए, ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हुए शायद आप 10 मिनट लगाते और एक्सप्लेन कर देते, और उस टाइम पे आप कोई और काम भी तो कर सकते थे, यू वुड हैव डन समथिंग एल्स, जो कि आप नहीं कर पाए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। ठीक है, बिकॉज एट मोस्ट ऑफ द टाइम एज वी रिलाई ऑन ओरल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे स्पेशली व्हेन we are conducting business communication which is formal and very organized, then you need not to rely on oral communication. आपको बॉस ने ऑर्डर दिया, आपने उसकी बात सुन के आपने उसमें रिलाई करें। मैं इसकी मिसाल भी आपको यहाँ पे देता हूँ। फ़ोन पे आपको बताएगा कि ये काम कर दें, आपने फ़ोन पे यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन हुई, आपने वो काम कर दिया। अच्छा, उसी दिन आपको उस साइट से हटा के दूसरी साइट पे लगा दिया गया, उसके बाद हालात कुछ ऐसे पैदा हुए, आप पीएचडी करने बाहर चले गए, आप जॉब छोड़ के चले गए, दूसरा बंदा वहाँ पे आया उसी साइट पे जहाँ पे ये आपको एक ऑर्डर हुआ था काम करने का, अब बॉस भी वहाँ से चेंज हो गया, अब वहाँ जो टीम थी वो चेंज हो चुकी है, वो सोचते रहे ये काम किसने करवाया और क्यों करवाया। ओरल कम्युनिकेशन ने ये चीज़ आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट किया कि ये नहीं पता चल सका कि ये वाला एक्शन किसने किया, ये पुल किसने बनवाया, ये काम किसने किया, बिकॉज डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड कोई भी नहीं था।
So that's why we say that in business communication, oral communication is less important as compared to written communication. मीटिंग्स होती हैं, आप मैसेजेस कन्वे करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, बट जहाँ पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, आप टॉप से लोअर हायरार्की में कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर आपको रिटन कम्युनिकेशन करनी पड़ती है. सो इसमें जो ओरल कम्युनिकेशन में है कि जहाँ मीटिंग्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, वहाँ तो चलेगी. लेकिन जहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई ऑर्डर है, कोई प्रोसीजर्स हैं, तो फिर यू हैव टू ब्रिंग देम इन रिटन फॉर्म. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड लेस ऑथेंटिक, क्योंकि ये इनफॉर्मल होती हैं और ये ऑर्गेनाइज नहीं होती. जबकि रिटन जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है. गो के ओरल कम्युनिकेशन इज टाइम सेविंग फॉर डेली इंटरेक्शंस, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि टाइम सेविंग है, लेकिन होता क्या, व्हेन यू प्रेफर फॉर मीटिंग्स एंड स्पीचेस एंड लेक्चर्स, तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि बॉसेस को बहुत शौक होता है मीटिंग्स का, और वो सारा दिन मीटिंग्स ही होती रहती हैं, काम कोई नहीं होता. लंबी लंबी तकरीरें चल रही होती हैं कि एक तरफ वी से दैट इट इज़ टाइम सेविंग एज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. So when you are in your practical life, when you are going to communicate with your subordinates, with your employees, with your colleagues in your lower hierarchy or in equal hierarchy, या किसी से भी आप बातचीत करें, so you have to look at the meetings, look at the speeches, that these things should not take more times. So disadvantages से आपने बचना है. This is what oral communication can be successful. वरना क्या होता है जी कि 2 बजे छुट्टी का टाइम था, 2 बजे से 10 बजे तक रात मीटिंग ही चलती रही. मीटिंग में बात कोई भी नहीं थी. देयर वर रेपिटेशंस एंड रेपिटेशंस एंड यूजलेस रेपिटेशंस. ठीक है, सारे का सारा वक्त उधर ज़ाया हुआ. सो दिस इज डिसएडवांटेजेस, एंड दीज थिंग्स आर नॉट ईजी टू मेंटेन as they are unsteady, as there may be misunderstandings, as the information is not complete and may lack essentials. अच्छा, इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि apart from its disadvantages related to meetings, इन्हीं मीटिंग्स पे बात करते हैं, लेक्चर्स पे बात करते हैं. there are some things that may not be delivered, there are some things available. लेक्चर्स या मीटिंग्स जितनी भी चीज़ें होती हैं, दे आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस, कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस, एंड देन देयर मिनट्स आर नोटेड. जो ओरल कम्युनिकेशन का जो डिसएडवांटेज है उसको कवर करने के, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि द मेन डिसएडवांटेज, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग इज दैट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड. पहले ये समझा जाता था, लेकिन अब उनके मिनट्स जब बनाए जाते हैं, या लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स को अगर रिटन फॉर्म में रखा जाता है प्रेजेंटेशन की सूरत में, तो उससे क्या होता है, जो उसका हम कहते हैं ना कि दैट इट इज़ टोटली रिलाइंग ऑन मेमोरी. ठीक है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड. तो वो चीज़ें, वो जो डिसएडवांटेज है इसका ओरल कम्युनिकेशन का, वो कवर हो जाता है कि जब आप मिनट्स बनाते हैं मीटिंग के, वहाँ पे आप सारी चीज़ें आप डिस्कस करते जाते हैं. यानी कि मिनट्स में एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड देयर, एवरीथिंग इज़ रिटन देयर. जिसने मीटिंग नहीं अटेंड की उसको बाद में भी पता चल जाता है. सो इवन देन वो मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो भी इतने आसान नहीं होते मेंटेन करने, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो आपको डिसीजंस का पता ही नहीं चलता कौन सा डिसीजन हुआ या नहीं हुआ. ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज लीगल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट इन इन्वेस्टिगेशन वर्क. ठीक है, अटेंटिवनेस की ज़रूरत होती है, ऑडियंस तवज्जो के साथ सुने, कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that when you're orally going to communicate with your subordinates, your colleagues, your boss, if he's not attentive, then communication will not be successful. And these communications cannot be taken as legal records. Legal records मैंने अभी आपको बताया. I've shared one example with you that एक बॉस ने ऑर्डर जारी किया, वर्बल ऑर्डर जारी किया, वो बॉस चेंज हो गया, वो सबॉर्डिनेट चेंज हो गया, पीछे सब ढूंढते रहिए क्यों ये काम किया गया, बिकॉज दैट वाज बेस्ड ऑन ओरल कम्युनिकेशन. इवन
इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ छोटी सी, कि एक इदारे ने मुझे एक इदारा जब वो कोई डिसीजन लेता है ना, बॉस डिसीजन लेता है, तो वो कहता है जी कि ये काम कर दें, तो उसके बाद वो लेटर भी उस अपनी लोअर हायरार्की में एक लेटर भी जारी कर देता है, डायरेक्टली एक लेटर जारी कर देता है कि आपने ये काम जो है ये करना है, डू इट, ताकि दैट सो दैट इट शुड बी रिकॉर्डेड। आपके साथ जो ओरल कम्युनिकेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट एनीथिंग और द यूनिवर्सिटी इज टेलिंग यू अबाउट एनीथिंग, सो कम्युनिकेशन ओरली अगर वो बताते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अगर रिटन फॉर्म में वाया ईमेल्स आपको कम्युनिकेट किया जाता है, सो दे टेक इट एज अ रिकॉर्ड कि आपको ये बात बताएगी और आपने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। I was teaching, I was allotted with a course in a university to teach technical and report writing skills. And I had some issues with timetable. When I talked to the administration, they talked to me, they told me via telephone, ठीक है, टेलीफोन के ज़रिए मुझे बताया गया कि आप जो है वो ये कोर्सेज आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद आई टॉक टू देम अबाउट टाइम टेबल, दे वर नॉट रेडी टू एडजस्ट माई टाइम टेबल, एंड देन आई रिप्लाइड देम दैट आई एम नॉट अवेलेबल अकॉर्डिंग टू योर टाइम, सो आई एम सॉरी दैट आई एम अनेबल टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे कहा, वो कहता है आप काइंडली एक ईमेल लिख के हमें ये इन्फॉर्म कर दें कि आप हमें नहीं पढ़ा सकते। सो आई आस्क्ड हिम कि आपने मुझे फ़ोन पे बताया तो मैं ईमेल कैसे लिखूं, आप मुझे ईमेल पे लिखें तो मैं आपको वाया ईमेल जवाब दूं, because he wanted to make a record, so I also wanted to make sure that the record is available। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन में। हाँ, कुछ कोई बोल रहा था, बोले बोले, somebody wanted to talk, please speak out। अच्छा, बोलिए बोलिए। सर कुछ बोलना ही था, वो माइक गलती से म्यूट हो गया था। आप बोले बोले। अच्छा अच्छा, सो व्हाट आई एम शेयरिंग कि मैंने एक एक्सपीरियंस आपके साथ बताया कि उसने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मेरा काम नहीं है कि मैं उसको रिटन फॉर्म में जवाब दूँ। ही वांटेड टू मेक द रिकॉर्ड, बट रिकॉर्ड ऑफ वन साइडेड कम्युनिकेशन। देन व्हेन आई टोल्ड हिम कि प्लीज़ आप मुझे लिखें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ना आज तक वो कभी ईमेल आया और ना उस ईमेल का कभी जवाब गया। ठीक है, सो ये verbal communication की types, when we are going to teach you, basically when you're going to work in any organization, you must know about its importance, that if you are orally communicated and you find that this can create a problem, boss ने एक order जारी किया, verbal order जारी किया, and it can create problem for the employees, so ask him please sir ये हमें खत काइंडली रिटन में भिजवा दें ताकि हम इस पे एक्शन करें, so it should be a part of record। out of record actions जो है ना वो that are of a temporary nature। verbally अगर बताएगा तो वो उसी दिन एक्शन होगा, but that is of a temporary nature। अगर उसने कहा जी कि कल से सारे लोग वाइट कैप्स पहन के आएंगे, सो वर्बली उसने बताया तो पर एक दिन ही पहन के, ठीक है जी कल पहन के आना, बाकी नेक्स्ट डेज किधर है जी रिकॉर्ड, अजी मैंने वर्बली, दैट इज नॉट अ रिकॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। Okay, now let's talk about another type, that is written communication। So who want to read the slides? Should I ask somebody to read the slide? Muniba, please इसको पढ़ें, slide को पढ़ें। Written communication. A written communication means the sending of messages, orders, or instructions in writing through letters, circulars, manual report, telegrams, office emails, bulletins, etc. It is a formal method of communication and it is less flexible. So look here, I have also provided जी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही शायद हाँ आप सर, आपके पास तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, फेसबुक पे पहुंचे वहाँ तो सब कुछ आ रहा है, वहाँ पहुँच वहाँ हाँ वहाँ चले जाए, वहाँ भी बिल्कुल क्लियर है, जिसको नहीं नज़र आती वहाँ पे देख लें। ठीक है, सो लुक एट द स्लाइड। I have already explained that when you are going to pass orders, when you are going to give instructions, then you have to adopt written means of communication if you are
passing your communication in the form of spoken words, then it will not last long. So you have to write letters, you have to write circulars, manuals, reports, telegrams, office memos, bulletins. Because it is being a formal method of communication, it is less flexible. Remember, as spoken flexible है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं, एक दिन कहा गया सो खत्म हो गई बात. But this is less flexible because it is written, लिख दिया गया, डेट आ गई, so that is less flexible, उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. So when you are going to communicate in written form, so you have to make sure that your whatever you are going to write, your message should be conveyed properly. You are successfully conveying your message. जो कुछ आप लिख रहे हैं, जो आप बयान करना चाहते हैं, उसको भी ये समझ आए. There should not be any ambiguity. There should not be any clash. एक पैराग्राफ में आपने कुछ और बात लिखी, दूसरे में कुछ और लिखी. रीडर को आपने परेशान नहीं करना, उसको यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट ओपिनियंस एक ही जगह पे एक बात आप कह रहे हैं, एक पैराग्राफ में कह रहे हैं ये चीज़ अच्छी है, दूसरे में कह रहे हैं ख़राब है. सो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल व्हाइल डिलीवरिंग रिटन कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल. इट विल बी रिकॉर्डेड. ठीक है, रिकॉर्ड फाइल्स बनती हैं, फाइल्स में रिकॉर्ड की सूरत में रख लिया जाता है, साइन आपके किए होते हैं, दैट इज़ द रिकॉर्ड. So there are certain advantages of written communication, that it helps in laying down apparent principles, policies, rules. ठीक है, जब आप जैसे मैंने बताया कि the boss has passed some orders, and if they are not in the written form, so it will not be recorded. But and if it is in written form, ultimately it will be recorded and it will become, you can say, a permanent part of the organization. Being a permanent means of communication, record maintenance is enhanced through written communication. रिकॉर्ड बनाना यानी कि चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, कितने लेटर्स आए, कितनी एप्लीकेशंस आई, क्या चीज़ हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. सो देयर इज़ अ प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ that can be assisted through written communication. So वहाँ पे क्या होता है, यानी कि जब आप किसी को कोई काम बताते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो आप रिटन फॉर्म में जब देते हैं तो उसको पता होता है कि उसने ये काम करना है. जब आप स्पोकन फॉर्म में देते हैं, वो वहाँ खड़े खड़े इनकार कर दे तो क्या सबूत है. या आप इफ़ यू हैव टॉक टू समबडी समवेयर एंड यू पास सम ऑर्डर्स, ठीक है, वहाँ कोई दूसरा बंदा तीसरा बंदा नहीं है. सो देयर वर ओनली टू बॉस एंड एम्प्लॉय, दो ही बंदे बैठे थे, उसने ऑर्डर जारी से कहा मैं नहीं करता हूँ. सो क्या होगा, कोई एक्शन नहीं हो सकता. बट रिटन फॉर्म में जब होगा वो उसे लिखेगा और वो उसको जवाब देगा कि मैं नहीं करता. सो दैट कैन बी यू कैन से यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट कि इस बंदे ने मुझे इस चीज़ पे इनकार कर दिया कि ये काम वो नहीं कर सकता या नहीं करता, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. Written communication is more precise and explicit as it develops and enhances organizations. Image, किस तरह image enhance करता है. Ready record और references मौजूद होते हैं. Legal defenses इसकी बेस पे आपके चल रहे होते हैं. Ready references किस तरह, ready records किस तरह, एक प्रोडक्ट खरीदी गई, किस कंपनी से खरीदी, कितने पैसों की खरीदी, कब आई, कब रिजेक्ट हुई, किसने रिजेक्ट की, कब वापस गई, वो सारा रिटन फॉर्म में चल रहा है. कम्युनिकेशन चल रही है कंपनी से लोअर हायरार्की में, कंपनी से अपर हायरार्की में, सारा रिकॉर्ड एक जगह पे पड़ा हुआ है. सो इफ़ समबडी वांट्स टू नो अबाउट दैट रिकॉर्ड, तो वो डायरेक्टली दिखाएगा कि ये देखें जी, हमने फ़लाँ तारीख को ये आइटम रिसीव किया, फ़लाँ तारीख को हमने इसको यूटिलाइज़ किया, इसमें ये मसला था, ठीक है, और फिर इसको वापस किया, ये जवाब आया. सो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड. उससे पता चलता है दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, यानी कि ये लोग व्हाट वी से दैट दे आर वर्किंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर. जो अच्छे इदारे होते हैं वहाँ पे यही सिलसिला होता है, वहाँ पे यही सिलसिला होता है दैट दे कीप देयर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड. ठीक है, लीगल डिफेंसेस भी उसी चीज़ पे फिर वो कर सकते हैं. एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. While looking at the disadvantages of any type of verbal communication, you have to look
कि आप उनको किस तरह कोप अप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे के बताया भी है। रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट सेव अपॉन द कॉस्ट, पेपरलेस नहीं होती, यानी कि इसके अंदर स्टेशनरी और मैन पावर यूटिलाइज होती है। यू हैव टू गेट अ क्लर्क टू वर्क, टू राइट, टू टाइप, you have to get a PN to deliver letters, you have to get stationery to print, printer, stationery, computer, ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, बंदा खड़ा है, तकरीर की, चला गया, फ़ोन पे बात की, ख़त्म होगी बात, बट रिटन में ऐसे नहीं होता, ये चीज़ें फिर आपको ज़रूरत होती हैं। दिस इज़ वन थिंग दैट इट इज़ कॉस्टली इन द सेंस stationery, manpower, writing, typing, delivering of letters, delivering of communications में utilize होता है। Then in oral communications we see that the response was spontaneous, उधर ही बताया गया, यहाँ पे spontaneous नहीं होता, but यहाँ पे accurate होता है, recorded होता है, फ़ौरन जवाब नहीं मिलता, but it is recorded। If the receivers of the written message are separated by distance, फासले ज़्यादा हों तो फिर क्या होता है कि फिर वो जब स्पॉन्टेनियस नहीं होता, एक साथ वाले कमरे में भी वो फाइल जिस तरह नहीं होती, आपने ख़त लिख दी, अब ख़त का जवाब आएगा, फाइल दूसरे कमरे में पड़ी है, तब भी टाइम लगता है। सो यहाँ पे जो चीज़ है कि रिस्पॉन्स इज नॉट स्पॉन्टेनियस, दे नीड टू क्लियर देयर डाउट्स, ठीक है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक श्योर इस रिस्पॉन्स को, इस प्रॉब्लम को कैसे आप क्लियर करेंगे कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, you have to make sure that you are going to deliver a complete message। कोई प्रोडक्ट आपने किसी इदारे से ख़रीदी तो आपने उसका सारे का सारा आपने बताना कि ये कब ख़रीदी गई, किस लिए ख़रीदी गई, किसने प्रोवाइड की, इसमें क्या मसला आया, सो दैट कि उनको दूसरा ख़त ना लिखना पड़े। they need not to write another letter, rather they need to reply कि इसको वापस कर दें या इसको रख लें, ठीक है। Let me tell you one thing. Let me share one experience with you. Long ago, my father wrote a letter to वफाकी मोतसिब, ठीक है, इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, जो कि वापडा और मुख्तलिफ इदारों के मामलात को देखते हैं, जो उनके अंदर सरकारी मुलाजमीन जो गड़बड़ कर रहे होते हैं। हमारे बिजली के मीटर का मसला था तो उन्होंने ख़त लिखा। He wrote a letter, उस लेटर पे वफाकी मोतसिब ने मुतल्लिका एसडीओ को मार्क किया कि इस पे मुझे जवाब दें। एंड ही सेड कि ये जो हमारी रिपोर्ट है ये ठीक है और उनकी रिपोर्ट गलत है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा जी कि जो क्लाइंट जो कह रहा है ये बात गलत है, असल में रिपोर्ट ये है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, उसने साथ रिकॉर्ड, ही प्रोवाइडेड द रिकॉर्ड, उसने कहा जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक फ़लाँ तारीख को मीटर रीडिंग हुई और ये मीटर रीडिंग थी और ये था, सब कुछ था। So my father gave me that letter, that all the response कि ये ख़तो किताबत मैंने की है, हमारा इतना बिल था और ये मामला था। So मैं उसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि that how we have to ensure this communication is successful। मैंने सारे को पढ़ा, मैंने सारे बिल उठाए, एक एक रिकॉर्ड, तस्वीरें बनाई, बना के मार्क किया, उसके ऊपर निशाना लगाया कि they said that फ़लाँ तारीख को बंदा आया और उसने आके मीटर रीडिंग की, but the bill indicates that meter was read on flan date, so this is one disparity, ठीक है। उसने कहा जी कि इतने साथ आपने लिखा जी कि इतने हैं यूनिट्स कंज्यूम हुए, जबकि बिल के अंदर इतने यूनिट्स लिखे हैं। सो आई रोट ईच एंड एवरीथिंग फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। मैंने रोट इट बैक टू वफाकी मोतसिब। सो इमीडिएट अगला ख़त क्या आया कि आप दोनों बराए मेहरबानी वफाकी मोतसिब के ऑफिस में इस्लामाबाद को फ़लाँ तारीख को पहुँच जाए, वहाँ मामला ठीक हो जाएगा। मीन्स के व्हेन माई मैसेज वॉज कम्प्लीटली कन्वेड, तो उसको पता चल गया था कि भाई ये बंदा हक पे और वो ज़्यादती कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कवर कि जब आप किसी इदारे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर आप उसको सारे सबूत, सारी चीज़ें लेके देंगे। डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड यू हैव टू प्रोवाइड। सो रिटन कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल इन दैट सेंस, ऑल्दो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। Feedback is not immediate. Encoding and sending of the message takes time. But when you are writing, you are giving any message, so you have to make sure कि आप सारे का सारा जवाब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट में मैंने वो चीज़ लिख दी है कि effective written communication requires great skills and competencies in language and vocabulary use
Poor writing skills and quality have a negative impact on organization's reputation. Too much paperwork and emails burden is involved. यानी कि जब आपने रिटन कम्युनिकेशन करनी है, सो यू मस्ट हैव इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन. मैंने उसकी एग्जांपल आपको बताई. इट वाज इफेक्टिव and Wafaki Mutasib knew that I am at right, so he called that gazetted officer of 19 scale to come in Islamabad and defend the case, and I went there with my proofs and I won it. बात यही आ जाती है. यहाँ पे भी यही बात है कि जब आप अपना काम, टू मच पेपर वर्क तब होता है व्हेन कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव. एक बात आप लिख रहे हैं, फिर वो जवाब दे रहा है, फिर आप लिख रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, सवाल जवाब खेला जा रहा है. जब आपने हर चीज़ सबूत सारे रख दिए, so your communication will be effective. ठीक है, यानी कि you can remove these disadvantages. While looking at these disadvantages, you can cover it. आप स्टेशनरी का काम कम हो गया है. You are the boss, working as a boss, you need not a clerk. खुद आप लेटर बनाएं. You have learned business communication, you have learned communication skills. खुद लेटर लिखें, जवाब दें, जवाब लें, नीचे वालों को बता दें. That's it. So in the form of emails, in the form of मेल्स, लेटर्स, ठीक है, सारा सॉफ्ट कॉपी में अब चलता है. अब तो स्टेशनरी की कॉस्ट कम हो जाती है. इन डिसएडवांटेजेस को आप कवर कर सकते हैं. ठीक है, स्पॉन्टेनियस भी फिर जो है ना, रिस्पॉन्स भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है. ईमेल इज रिटन टुडे इन द मॉर्निंग एंड रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड इन द इवनिंग ऑन द सेम डे. उसी दिन वो रिस्पॉन्स भी मिल जाता है. होता है नहीं इस तरह, किसी जगह पे आपने जॉब उसके लिए लिखा, स्कॉलरशिप के लिए किसी चीज़ के लिए ईमेल लिखी, सुबह लिखी, शाम को जवाब आ गया. दैट्स व्हाट रिटन कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल नाउ. यानी कि ये डिसएडवांटेजेस गुजरते वक्त के साथ साथ, आईटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आने के साथ साथ, ये डिसएडवांटेजेस जो है दे आर गेटिंग लेसर एंड लेसर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट दैट व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, rather we are going to communicate through facial expressions, gestures, paralinguistic features, body language and postures, proxemics, eye gaze, haptics and appearance. So it is what you don't say that counts. आपके सामने तस्वीर में भी proxemics, distances, किस तरह haptics, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, जब भी डालते हैं किस तरह बात करते हैं आप, पर्सनल अपीयरेंसेस से, यानी नॉन वर्बली आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. वाजपेयी ने कौन सा लिबास पहना हुआ था, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, चेहरे के क्या तासुरात थे. सो दीज आर ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. सो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन words are not used, but it is most of the time it is culturally determined, and in some cases it has got different meaning. यानी कि कल्चरली डिटर्मिन होने की वजह से इसके अंदर मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं. किस तरह मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं कि जो मतलब आप अखज़ करते हैं किसी बात का, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी वही मतलब अखज़ करे जो दूसरा आदमी सुन रहा है. दूसरे ने जो आइडिया लिया उसने भी वही मतलब उसका लिया. ये दिस इज़ नॉट नेसेसरी. यानी कि वर्ड्स के बगैर जब होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई कांटेक्ट है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, टचिंग है, तो इसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे नॉन वर्बल में बचपन से आपने देखा, जो वही कल्चरली डिटरमिनेंट किस तरह है, दैट यू हैव लर्न द थिंग्स इन योर चाइल्डहुड, थिंग्स दैट हैव बीन पास्ड ऑन टू यू बाय योर पेरेंट्स एंड अदर्स विद whom you associate. So through this process of growing up in a particular society, you adopt the taints and mannerisms of your cultural groups. That's why it is culturally determined. And when it is different in meaning, so you can look at that non-verbal symbols can have many meanings. Cross-cultural aspects give various meanings to same expression in respect of non-verbal communication. These non-verbal communication sources are vague and emphasized because in this communication there is no use of word or language, so they do not express clear message to the receiver in certain cases. So it may conflict with verbal meaning sometimes. यानी कि आपके चेहरे के जो तासरात हैं और जो आप बोल रहे हैं, ये बाज़ दफ़ा आपस में मैच नहीं करते, अनकॉन्शियसली मैच नहीं भी कर सकते. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ लार्जली अनकॉन्शियस. जब आप बात करें, जेस्चर्स हैं, चेहरे के तासरात हैं, ये चीज़ें सारी अनकॉन्शियस होती है, बिकॉज दे आर नॉट प्लान्ड, दे आर नॉट रिहर्स्ड,
they are normal, usually it is instantaneous, and it shows feelings and attitudes like facial expressions, gestures, body movements. So the way you use your eyes all communicate your feelings and emotions to others. Lastly, it is basically based on informality, means non-verbal communication does not follow any rules, formality, or structure like other communication. Most of cases people unconsciously and habitually engage in non-verbal communication by moving the various parts of body. हाथ हिला के भी आप वो सारे के सारे काम करते हैं, बॉडी के पार्ट्स आपने मूव किए और आप उस तरह भी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये चीज़ें हैं कि नॉट ओपन टू कम्युनिकेटिंग, लाइंग, ठीक है। चेहरे के एक्सप्रेशंस आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। आप ट्राई टू ऐड सम कलर्स इन लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स। और स्टाइल एटीट्यूड आप देख रहे हैं, इनसिक्योर है चेहरे से, हाथों से एग्रेसिव लग रहा है, ठीक है, टांगों से क्लोज्ड माइंड लग रहा है, डिफेंसिव, इंटरेस्टेड। Okay, so now we are going to talk about types of verbal communication. The first type is regarding facial expressions. So Muzaffar is going to read this slide. So let's see that what he says to you. Muzaffar. Okay, sir. Facial expressions. Facial expressions are responsible for a huge proportion of non-verbal communication. Consider how much information can be conveyed with a smile or a frown. As different forms of non-verbal communication can vary dramatically between cultures, however, facial expressions for happiness, sadness, anger, and fear are similar throughout the world. So आपके चेहरे के तासरात से बहुत कुछ पता चलते हैं। कहते हैं तेरी सुबह बताती है तेरी रात का अफसाना। सो एंगर, हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट। कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस वो हैं विच आर यूनिवर्सल, और कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह के होते हैं विच आर नॉट यूनिवर्सल, रादर दे आर कल्चरल। कल्चर के हिसाब से वो जुड़े हुए होते हैं कि एक कल्चर के अंदर देर आर कल्चरल वेरिएशंस कि इसने चेहरे से जो तासरात दिए उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। समटाइम्स आप उस चेहरे के तासरात से जो मीनिंग आप लेते हैं वो उस कल्चर के अंदर वो मीनिंग नहीं होता, उस कल्चर के अंदर उसका मीनिंग कुछ और होता है। सो इसलिए कुछ इस तरह के हैं जो यूनिवर्सल है और कुछ यूनिवर्सल नहीं है। जो यूनिवर्सल है उनके बारे में बात कर दी, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, ये सारी दुनिया में एक जैसे चल रहे हैं। देन कम्स जेस्चर्स। जेस्चर्स में फिर कुछ चीज़ें देर आर्बिट्रेरी आल्सो। सम जेस्चर्स आर आर्बिट्रेरी, जैसे ट्रस्टवर्दी एंड स्ट्रेंथ, हाथों से इंडिकेशन दी जा रही है, कॉन्फिडेंस, रिलैक्स्ड। You can look at this one, look at the picture at right side. This one, I'd, God please, वो ये सारे वो जेस्चर्स हैं जो बता रहे हैं। डेलिब्रेट मूवमेंट्स हैं, बेसिकली सिग्नल्स हैं जिनके ज़रिए आप मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। कॉमन जेस्चर्स में विविंग, पॉइंटिंग, यूजिंग फिंगर्स, इसके ज़रिए न्यूमेरिक अमाउंट्स भी इंडिकेट की जाती हैं। 1 2 3 जिस तरह हम नहीं करते, इशारा करते हैं, थंब अप करते हैं, बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं। मैं इसकी मिसाल सिर्फ जेस्चर्स की देता हूँ कि हाथ के साथ भी दिए जाते हैं कि जब वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं, व्हेन दे टॉक टू द पायलट, द पर्सन हु इज़ ऑन ग्राउंड, व्हेन ही टॉक्स टू द पायलट ही गिव्स हैंड जेस्चर्स, हाथों से इशारे दे के सारी वो बातें करते हैं। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दे आर अनएबल टू टॉक टू द पायलट बट दे convey the complete message and they share common codes, ठीक है। उनको भी पता होता है कि ये मुझे क्या कह रहा है, दोनों एक वो ज़ुबान को जानते होते हैं कि ये मुझे क्या कह रहा है, इस तरफ मूव करो, सामने आ जाओ, राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, आग लगी हुई है, जहाज़ को उड़ा लो, जहाज़ को नीचे, जहाज़ को राइट साइड पे कर लो, जो भी इंडिकेशन है। सो ऑल दीज जेस्चर्स आर कॉमन अमंग द यू कैन से अमंग द रिसीवर एंड द प्रोड्यूसर। कुछ इस तरह के होते हैं जो एज दे आर डेलिब्रेट मूवमेंट्स, कुछ इस तरह के होते हैं जो हम आम तौर पे हम करते हैं। हाथों के साथ इशारा, किसी ने पूछा वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, सो आप हाथ से इशारा देते हैं, दैट इज़ अ जेस्चर कि इस तरफ है।
सो हर बंदे को जब आपने हाथ से राइट साइड पे इशारा दिया, सो राइट पे है, लेफ्ट पे इशारा दिया तो लेफ्ट पे है। बट एविएशन में हो सकता है लेफ्ट पे इशारा दिया जाए तो राइट हैंड ऊपर किया जाए तो कोई और इंडिकेशन हो, ठीक है। वहाँ पे कुछ जैसे मैंने बताया ना कि वो रिसीवर और प्रोड्यूसर एक दूसरे को जानते हैं, कुछ कॉमन है कुछ अनकॉमन है, मीन्स कि जो सिर्फ वही जानते हैं जो उस इंडस्ट्री में जो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। So paralinguistic features, this is another way of non-verbal communication. So who is going to read this slide is Janab Quratul An Fazal. Quratul An Fazal will read this slide. Okay, sir. Types of non-verbal communication, paralinguistic features. It refers to vocal communication that is separate from actual language, and it includes factors such as tone of voice, loudness, inflection, and pitch. Consider the powerful effect that tone of voice can have on the meaning of a sentence. When such is a strong tone of voice, it might interpret a fear and enthusiasm. The same word said in a hesitant tone of voice might convey disapproval and a lack of interest. So you can look at the slide, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या आपकी टोन से पता चलता है, आप ऊंचा बोल रहे हैं तो क्या इंडिकेशन है, ठीक, क्या जेस्चर देने कि आपको गुस्साया हुआ है, किस लिए ऊंचा बोल रहे हैं, आपकी पिच कैसे, मतलब आपकी आवाज़ से पता चलता है आप रो रहे हैं, मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपकी उस टोन से, लाउडनेस से, इन्फ्लेक्शन से, पिच से ये पता चलता है। पावरफुल इफेक्ट उस वक्त क्रिएट, जब आप ऊंचा बोलते हैं तो क्या इफेक्ट क्रिएट होता है, मीन्स कोई मैसेज कन्वे होता है जब आप ऊंचा बोलते हैं, जब आराम से बोलते हैं तब भी कोई मैसेज कन्वे होता है, ठीक है। किस अंदाज से एक ही बात की गई, मुख्तलिफ अंदाज से बात की गई, किस तरीके से बात की गई, दैट इज व्हाट पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। ओके, सो body language and posture, this is another way of non-verbal communication: defensive, arrogant, annoyed, irritated, happy, confused, and worried. These are the body language ways to tell. So posture movement, posture also tells, ठीक है। posture भी आप किस तरह बंदा खड़ा है उससे भी आपको एक मैसेज मिलता है कि ये यहाँ पे खड़ा है, किस अंदाज से खड़ा है, हाथों में हाथ डाल के खड़ा है, हाथ पीछे रखे हुए हैं, हाथ जेबों में डाले हुए हैं, सो वहाँ से मुख्तलिफ इंडिकेशंस मिलती हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा था। रिसर्च एंड बॉडी लैंग्वेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस द 1970s, बट पॉपुलर मीडिया फोकस्ड ऑन ओवर इंटरप्रिटेशन, डिफेंसिव पोस्चर्स। अभी ये चीज़ें चूँकि बॉडी लैंग्वेज पोस्चर उस हिसाब से इतना वो नहीं हुआ, बट मैंने जैसे बात की कि बंदा खड़ा होकर किस तरह आपसे बात कर रहा है। मिलिट्री में आप देखें तो वहाँ पे जब वो खड़े होते हैं, जब वो एड्रेस करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। परेड आपने करते 23 मार्च में देखी हो, जब वो बात की जाती है, जो वहाँ पे जो पोस्चर है वो किस तरह होता है उनका, वो क्या इंडिकेट कर रहे थे उस पोस्चर से, क्या कम्युनिकेट, दैट दे आर अलर्ट, ठीक है। जिस तरह वो खड़े होते हैं वाघा बॉर्डर पे, समबडी ऑफ यू हैव विजिटेड वाघा बॉर्डर, यू कैन लुक एट देम, किस तरह वो खड़े होते हैं, किस तरह अलर्ट खड़े, इंडिकेशन दे रहे होते हैं, एक मैसेज दिया जा रहा होता है कि हम अलर्ट खड़े हैं एंड वी आर प्रिजर्विंग द प्राइड ऑफ द नेशन, ठीक है। सो इस तरीके से भी कुछ ना कुछ मैसेज ही कन्वे होता है, कम्युनिकेट किया जाता है। देन इज प्रोक्सेमिक्स। चलिए जी, प्रोक्सेमिक्स किसने पढ़ना है? लेट मी आस्क सामिया आसिफ। सामिया इसको पढ़ें जी। Proxemics. People often refer to their need. Screen change aa rahi hai. People often refer to their need for personal space, which is also an important type of. आप इसको important type. आप इसको अपने एक मिनट, आप अपने मोबाइल को की वॉइस जो उसको साइलेंट करें, वाइब्रेटर जो ऑन है ना ये इसी तरह करता रहेगा, उसको आप साइलेंट उसको साइलेंट कर लेना, वाइब्रेशन ऑफ कर दें ताकि वो आपके बोलते हुए प्रॉब्लम ना। बोलिए अभी। People often refer to their need for personal space, which is also an important type of non-verbal communication.
The amount of distance we need and amount of space we perceive as belonging to us is influenced by a number of factors including social norms, situational factors, personality characteristics, and level of familiarity. For example, the amount of personal space needed when having a casual conversation with another person usually varies between 18 inches to 4 feet. On the other hand, the personal distance needed when speaking to a crowd of people is around 10 to 12 feet. सो ये पता है क्या होता है, पर्सनल स्पेस एक इंडिकेशन देती है दैट यू आर मेंटेनिंग अ सोशल स्पेस, यू आर मेंटेनिंग अ पब्लिक स्पेस, यू आर मेंटेनिंग इंटीमेट स्पेस. जो बड़े करीबी लोग होते हैं ना, इंटीमेट स्पेस क्रिएट होता है हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, कितने करीब वो बैठे हैं. सो देर इज़ अ पर्सनल स्पेस, ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर कोलीग्स, ठीक है. देन देर इज़ अ सोशल स्पेस, जब थोड़ा सा यानी कि जिन लोगों से आपके ज़्यादा ताल्लुक, आप दूर से उनसे बात करते हैं. फिर जब आप क्राउड से बात करते हैं आपका डिस्टेंस और ज़्यादा, वैन दैट इज़ पब्लिक. सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने बार बार आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली डिस्टेंस जोन्स, वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपके किसी से क्या रिलेशंस हैं. अब देखें, मैं इसकी मिसाल इस तरह भी दूंगा कि जब दो हेड ऑफ स्टेट्स आपस में मिलते हैं तो दरमियान में एक मुल्क का झंडा होता है और दोनों साइडों पे दोनों की चेयर्स रखी जाती हैं. अगर वो झंडा दरमियान में हो और चेयर्स दूर रखी जाएं तो उससे इंडिकेशन भी, उससे ये मैसेज भी कन्वे किया जाता है कि इनके ताल्लुकात आपस में कैसे हैं. हमें नहीं पता होता वैसे, लेकिन देखें प्रोक्सेमिक्स हमें बताती है कि ये किस तरह के ताल्लुकात मेंटेन किए जा रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, फिर वहीं पे खड़े होते हैं, जब वो एड्रेस करते हैं तो वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, दोनों का अपना अपना रोस्टम होता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया होता है. सामने पब्लिक होती है, पब्लिक से किस तरह डिस्टेंस मेंटेन होता है. सो वो इंडिकेट किया जाता है दिस इज पब्लिक, ठीक है. इस तरीके से बेसिकली एक इंडिकेशन दी जाती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर. इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुकात हैं इनके दरमियान. ओके, देन आई गेज भी है, आप देखें इसमें आंखों के साथ लुकिंग, स्टेयरिंग एंड ब्लिंकिंग, दैट कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पंजाबी में कहते हैं आँख मारी है, उसने आँख मारी, पीछे से हॉस्टल में थे आप, बंदे की कोई चीज़ आपने चुराई, उस आँख मारी तो आपने एक्शन कर दिया, बस ठीक है जी. तो चेहरे से अच्छा गुस्से का इजहार किया, आंखें, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो आंखें निकाल के देखना. सरप्राइज में आंखों की क्या सिचुएशन होती है, या पल्पिल डायलेट, जो पपिल्स हैं वो डायलेट कर रहे होते हैं, जो आंखों के अंदर वो जो होता है ना, वो गोल गोल सा जो मरकज़ वाला, वो अच्छा आइज़ ब्लिंक कर रही होती हैं, उससे कोई इंडिकेशन मिलती है. और इवन आइज़ गेज के ज़रिए ख़ास तौर पे व्हेन यू कैन लुक एट द एग्जांपल, पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच लगा हुआ था, यहाँ पे मैं वर्बल कम्युनिकेशन हाथों की बताता हूँ. यूनुस खान हैज़ गिवन एन इंडिकेशन टू यासिर शाह कि आपने किधर बॉल फेंकना है, कैसे करना है, हाथों से इशारा दे रहा था, एंड ही डिलीवर्ड दैट वे एंड दे वन द मैच, कि उसने उसको आउट कर दिया. सो बाज़ दफ़ा विकेट कीपर और बॉलर के दरमियान भी आंखों के ज़रिए कुछ चल रहा होता है, कोई बातें चल रही, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. सो वो खिलाड़ी को, वो कॉमन कोड शेयर कर रहे होते हैं, उससे बातचीत कर रहे होते हैं. बैट्समैन को नहीं पता होता, और if they successfully communicate with each other, so ultimately they achieve their targets. होता है ना इस तरह. अच्छा, सरप्राइज भी इंडिकेशन आप उस गेम के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर ही देखें कि आउट किया तो वो चेहरे से देखता कि यार इसने आउट नहीं दिया. जॉय भी आपको नजर, वो दे डू नॉट स्पीक बट दे इंडिकेट जॉय. खिलाड़ी जब आउट होके जा रहा होता है, यू कैन लुक एट हिज सिचुएशन, गुस्से में होता है, सैडनेस होती है, डिस्कस्ट होती है. अच्छा, गलत आउट दिया, एंगर नजर आएगी आपको. शुएब मलिक बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा है, सो वी कैन लुक एट द फियर कि इसको कभी मुंह पे लगा, कभी सर पे लगा, कभी नाक पे लगा, उसके चेहरे से पता चलता है. सो बॉलर एंड बैट्समैन दे आल्सो कम्युनिकेट नॉन वर्बली थ्रू आइज गेज, कि वो बता रहे होते हैं एक दूसरे को. होता नहीं होता ऐसे? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, हैव यू एवर सीन दीज थिंग्स, दे कम्युनिकेट दिस वे. देखा है कभी जी? Okay, so haptics. This is another type of nonverbal communication. So who is going to talk on it is
Shaista Kamal, please read this slide. So मेरी screen show नहीं हो रही. स्क्रीन नहीं शो हो रही? So हो रही है अभी. हाँ. Haptics communicating through touch is an important non-verbal communication. There has been a substantial amount of research on the importance of touch in infancy. In contact impedes development. Baby monkeys raised by wire mothers experience permanent defects in behavior and social interaction. Touch can be used to communicate. Yes, please speak out. Yes, sir. हाँ प्लीज. पढ़ लिया सारा? Yes, sir. इधर कोई सांप लगे हुए हैं, पागलों की तरह कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं और मैं उसको बता भी रहा हूँ कि आई एम ब्लॉकिंग यू. ओके, सो कम्युनिकेशन थ्रू टच इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हाथ मिलाया, सिर्फ हाथ मिलाया, ठीक है. टू हेड ऑफ स्टेट्स टॉक टू ईच अदर, दे हैव जस्ट शेक्ड हैंड्स, सो वो एक इंडिकेशन देती है. हाँ, सिर्फ हाथ मिलाए, हाथ हिलाया, जफ्फी डाली, ठीक है. सो यू कैन लुक एट दीज एग्जाम्पल्स कि किस तरह उसने उसको किया ना. देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टच इन इन्फेंसी and early childhood. Harry Harlow's classic monkey study demonstrated how the deprivation of touch and contact impedes development. कि जब कोई बंदा परेशान होता है, आप जाके उसको वो किसी की फौतगी होती है, आप उसको सीने से लगाते हैं, उसका जो है ना वो दुख हल्का हो जाता है. दैट इज़ एन इंडिकेशन. हैप्टिक्स के ज़रिए आप वर्बली कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, दैट यू आर फीलिंग दैट व्हाट वी से, दैट यू आर आल्सो फीलिंग हिज पेन, ठीक है. You are also sharing the joy, ठीक है. So these are also sources of communication. Haptics के ज़रिए भी आप communicate करते हैं. Okay. So appearance. There is another way to communicate. So who is going to talk on it is Tokir Hussain. हाँ जी तोकीर बोलिए. Appearance. Our choice of color, clothing, hairstyle, and other factors affecting appearance are also considered a means of non-verbal communication. Research on color psychology has demonstrated that different colors can evoke different moods. Appearance can also alter physiological reactions, judgments, and interpretations. Just think of all the subtle judge you quickly make about someone based on his or her appearance. These first impressions are important, which is why experts suggest that job seekers dress appropriately for interviews with potential employers. So appearance is very important. Your appearance also gives a message to other people. इसकी मैं एग्जांपल एक आपको छोटी सी देता हूँ कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या मैसेज जो है कोई लेता है ना. आपका जो ड्रेस होता है, लिबास, वो बताता है कि आप कौन हैं. अब यहाँ पे देखिए कि you can look at the people who is the doctor, who is an engineer, who is a professional, who is a mechanic. हर एक का अपना अपना लिबास है. So that communicates the message. I am a teacher, I am a student, I am an engineer, I am a doctor, I am a lawyer, I am a driver. Who am I? So that communicates that message. और इसी मैसेज के ज़रिए जब आप when you are going to apply for the job, so through non-verbal communication you tell that do you deserve for that job or not. Sometimes due to only due to your appearance, although you have got a very good knowledge
you deserve for the job, but due to appearance you are rejected. वो कहते हैं जी ये लगता ही नहीं है, ये ऐसा लगता ही नहीं है. मैं इसकी मिसाल देता हूँ इस तरह की. हमारे यहाँ इस तरह एक नौजवान था. When we were appearing in graduation examination, तो वहाँ पे एक नौजवान था. वो आया एक इम्तिहान देने के लिए, उसने वेस्ट कोट पहनी हुई थी, सूटेड पूटेड वो होके आया, एंड ही वॉज क्वाइट लेट टू अपीयर इन एग्ज़ाम. 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, वो 9:30 बजे तशरीफ़ लाया. तो जब वो आया तो वो जिस अंदाज से वो आया तो ऐसे लग रहा था वो ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, रादर ही इज़ एन इंस्पेक्टर ना, मतलब जिस लिबास में वो सूटेड पूटेड होके आया था. तो ही वॉज गिवन अ प्रोटोकॉल ऑफ एन इंस्पेक्टर. आइए सर आइए, बैठ आइए सर आइए. वो पहुंचा और पहुंचते ही कहता है सर मेरी सीट किधर है, मेरा ये रोल नंबर है. तो जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने एक दफ़ा तो उसको झाड़ा कि ये तो भाई ये बंदा तो ये तो स्टूडेंट है, तुम इतनी देर से आए हो, क्यों देर से आए हो. बट आई अप्रिशिएट हिज अपीयरेंस कि वो एक मतलब उसका जो गेटअप था, ड्रेस था, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव. हमारे यहाँ नॉर्मली दिस इज यू कैन से दिस इज अ वीक एरिया, स्पेशली इन एकेडेमिया, स्पेशली इन टीचिंग. ठीक है, बहुत सी जगहों पे लोगों का जो असातिज़ा का जो लिबास होता है उससे नहीं पता चलता कि वो उस्ताद हैं. ठीक है, बट आई कांट से आपने कभी मुझे यूनिवर्सिटी में देखा नहीं, कभी आप गए नहीं. अदरवाइज आई टेक इट वेरी मच सीरियसली. जब मैं जाता हूँ तो एटलीस्ट मैं आई शुड लुक लाइक अ टीचर. ठीक है, जहाँ पे भी आप जाते हैं उस्ताद है तो उस्ताद ही नज़र आए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही नज़र आए. सो दैट इज़ कम्युनिकेटिंग. ठीक है, दैट इज़ कम्युनिकेटिंग समथिंग. यू आर अ स्टूडेंट, योर ड्रेस विल टेल दिस यू आर अ स्टूडेंट कि आप कौन हैं. पैगाम ये देते हैं ना, आपका लिबास बताता है कि आप कौन है. अच्छा, पैगाम फिर यही वर्बल यही अपीयरेंस क्या पैगाम देती है. जैसे मुहर्रम के महीनों में अहले हज़रात काले कपड़े पहनते हैं, सो वो क्या पैगाम देती हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं. दे आर इन व्हाट वी से मॉर्निंग का ड्रेस है जी उनका. सो अपीयरेंस टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो आप भी जब अपनी, मैंने इसको स्पेशली ख़ास तौर पे इसको ऐड किया, मैं साथ इसको ऊपर बात भी करूँगा कि व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द जॉब और वेदर यू कम टू द यूनिवर्सिटी, प्लीज़ यू आर अ स्टूडेंट, सो यू मस्ट लुक लाइक अ स्टूडेंट. आप ऐसे कपड़े ना पहन के हैं कि ऐसे लगे कि शायद ये जो है ना किसी होटल से निकल के आ गया बंदा, चाय वाला आ गया, कोई कंडक्टर आ गया. साफ सुथरे कपड़े पहन के हैं, गंदे कपड़े नहीं, पुराने हों या नए हों, बट दे मस्ट बी क्लीन. यू शुड लुक लाइक अ स्टूडेंट. You should not look like a driver. You should not look like a conductor. You should not look like a waiter. ठीक है, you should look like a student. So indication है, पैगाम है ना कि you are serious, you are a student and you look like a student. यहाँ पे डॉक्टर उसने stethoscope, you can look at the stethoscope. He is hanging around his neck. ये उसको अपने हाथ में भी पकड़ सकता है. ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाली नर्स का लिबास देखें आप, उसकी बजाय अगर इस ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाली नर्स ने इसकी बजाय कसाई वाला लिबास पहना होता तो क्या लगता, वो कसाई नज़र आती. ठीक है, सो ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू योर प्रपोज्ड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, so there are certain differences between verbal and non-verbal communication. So now we are going to talk about them. So first is related to the definition. So who is going to talk about who is going to define it? So let's see who is going to define it. And Sumera Shuhaib will read this slide. Definition. Verbal communication involves the use of words, language to express the emotions or thoughts or exchange information. Non-verbal communication involves the use of visual or non-verbal cues such as facial expression, eye or body movement, gestures, and many more without speaking. Okay, please. So first thing is the difference of definition. The first difference. In verbal communication, we use words or speech to express emotions, thoughts, to exchange information. Whereas we do not use word and speech in non-verbal. We use facial expressions, eye or body movement, gestures and other things. बगैर बोले आपने जो कम्युनिकेट करना है उसको नॉन वर्बल कहेंगे, और बोले या लिखने से जो आप कम्युनिकेट करें मीन्स
वर्ड्स के ज़रिए जो आप कम्युनिकेट करेंगे, वर्ड्स इन रिटन और स्पोकन फॉर्म, जब आप वो कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज़ व्हाट verbal communication. Or verbal communication is can be formal, can be informal, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इनफॉर्मल. ठीक है, रिटर्न जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सूरत में हो सकती है, यानी कि आप बोल के उसको वो करते हैं. वो वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होती है? फॉर्मल कैसे होती है? आप लिखते हैं. इनफॉर्मल कैसे होती है? जब आप बोलते हैं. फॉर्मेलिटीज़ आप फॉलो करते हैं ना रिटन फॉर्म में. Even sometimes while speaking you follow the formalities, but in non-verbal that is informal, कि आपके सामने ये non-verbal की वो इंडिकेशन भी दी जा रही है कि उससे हाथ से थंब अप कर दिया, थंब डाउन कर दिया. Next important thing that is related to verbal and non-verbal communication is the impact of message. Verbal messages are impactful because they are documented. When they are documented they are impactful. अगर documented नहीं होंगे तो impactful नहीं होंगे, असर नहीं होगा. So verbal में ही documented होता है. non verbal comprehensive तो हो सकती है लेकिन ये impactful नहीं होती. ठीक है, comprehensive होती है क्योंकि ये उसके actual emotions को जो बंदा है जो communicate कर रहा है उसके actual emotions को दिखाती है. Verbal communication communicates precise information, precise and accurate information, but sometimes in non-verbal communication you need more information. यानी कि उसने इशारा तो दिया, आप इशारों में बात कर रहे हैं तो आप उससे सारे ला के पूछे हाँ क्या कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो, यानी आपको नहीं पता होता कि वो क्या कहना चाह रहा है non-verbal में. So how they are conveyed? शानीला प्लीज इस स्लाइड को पढ़िए. Conveyed through verbal communication is conveyed through mails, letters, notes, reports, that is anything written in oral format with words only. Non-verbal communication is conveyed through body posture, gestures, eye contact, face expressions, that is any form of expression. Transparency is complex and confusing. वर्बल कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू मेल्स. ठीक है, मेल्स के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, नोट्स, रिपोर्ट्स के ज़रिए कन्वे होती है रिटन फॉर्म में या ऑरल फॉर्म में. जो नॉन वर्बल जो है वो बॉडी पोस्चर से कन्वे होती है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मुख्तलिफ है दोनों के. एक वर्ड्स के ज़रिए होता है तो दूसरा बॉडी के ज़रिए, जेस्चर्स के ज़रिए, आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए, फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए होता है. If we talk about the transparency status, verbal communication is clear and concise. वाज़े होती है. ठीक है, वाज़े होती है. ये नॉन वर्बल कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि नहीं पता चलता आप बोल रहे हैं दूसरे को समझ आई है कि नहीं आई. बाज़ दफ़ा आ जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं आती. कंफ्यूज होगा, वो उसका कोई और एक्शन करेगा. आपने उसे कहा कि ये काम कर दो, उसने उसका उलट कर दिया. समटाइम्स इट हैपन्स. So which is more impactful in getting our messages across, verbal or non-verbal? क्या कहते हैं आप लोग? So now we are going to start question and answer session. Please give me your feedback कि आप क्या समझते हैं, कौन सी ज़्यादा impactful होती है, verbal या non-verbal? बताएं जी, वन बाय वन थोड़ा थोड़ा बताते जाएं. मरियम नदीम बताइए जी, विच इज़ मोर इम्पैक्टफुल, वर्बल और नॉन वर्बल? असर कौन सी ज़्यादा करती है? क्या दोनों को इकट्ठा करके दोनों साथ साथ चलें या एक चले? वर्बल इज़ नॉर्मली यू कैन से वर्बल इज़ नॉन वर्बल इज़ फॉलोड इन ओरल कम्युनिकेशन. रिटर्न में तो वर्बल चलेगी नहीं ना, रिटर्न में तो नहीं पता चलता. बेसिकली ओरल और नॉन वर्बल आपस में जब आप बोल रहे हैं तो तभी आप नॉन वर्बल को इस्तेमाल कर सकते हैं इन सर्टन सिचुएशंस, नॉट इन ऑल सिचुएशंस. ठीक है, तो क्या कहते हैं कौन सी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए, वर्बली या नॉन वर्बली?
खामोश हो गए। सदफ, Yes, sir. आप बताइए। Sir, I think दोनों को मिक्स अप करके चलना चाहिए। हाँ, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उसको उसी को बरूए कार लाया जी। जाए, उसी को बरूए कार लाया जाए, ठीक है। और अगर उसकी ज़रूरत सर। ना हो तो फिर आप उसको बरूए कार नहीं ला सकते। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन? क्या आपने महसूस किया, कैसी आपको लगी? आप उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें। ये तरीक़ेकार ठीक है वीडियो ब्रॉडकास्ट का, इसके ऊपर भी आप फीडबैक दें ताकि हम इसी को फिर साथ कंटिन्यू भी रखें। बताते जाइए, ठीक है। अभी प्रेजेंटेशन में कोई मसला तो नहीं था? चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई? दोनों सर आगे समझ आ गया था। अच्छा, प्रेजेंटेशन ठीक है, लेक्चर्स ठीक हैं? ओके Yes, sir. Yes, sir. okay, so you don't have any questions, and still we have 15 minutes more and we need to discuss some more things. Rather not 15 but yes 15 minutes, almost 15 minutes. कोई सवाल इससे related, verbal and non-verbal communication से related, before writing our question paper, before submitting the question paper to the university, we'll be having an overview of important topics, I mean to say important areas that we are going to discuss in exam, ठीक है। चीज़ें आपको पढ़ानी सारी हैं लेकिन एरियाज उस तरह आपको बता देंगे ताकि आप उन चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों को करके। we are very unlucky that we are not having these classes in the university, otherwise it would have been much better. We would have learned a lot of things, we would have done it practically. ज़्यादा काम फिर आपसे करवाना था, but as we have to record the lectures, we have to keep the record, we have to make sure that everybody is listening to the lectures. So certain we have to follow certain other things. कुछ dynamics change हो जाते हैं, सेम क्लासरूम की dynamics नहीं होते, बट कोशिश की जाती है कि आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। एनी अदर क्वेश्चन कोई किसी ने पूछना हो? यहीं से शुरू करते हैं। अली हसन, कोई क्वेश्चन? No, sir. अलीज़ा शबीर, No, sir. Question. आमिना वारिस, No, sir. No question. बिलाल सरवर, समझ आ गई है सर। ईमान आमिर, ईमान मेरे ख्याल में उधर अटेंड करती हैं उसके ऊपर ना। हफ्सा बतूल, No, sir. No question. हिबा इमरान, हमना शहजादी। No question, sir. अच्छा, हिबा इमरान ने माइक ऑन किया है, ऑन करके खामोश हो गई, बोली नहीं है ना। इकरा जावेद, इकरा आपकी भी आवाज़ नहीं आई, ठीक है ना। आपने भी माइक ऑन की, आवाज़ नहीं है आपकी, ठीक है। कमल जावेद, No, sir. No question. मलाइका बीबी, No question, sir. मनीहा अकरम, Sorry, yes, sir. मैमुना रज़ाक, No question, sir. मुनीबा जबीन, No question, sir. नगीना बतूल, No question, sir. आ गया sir. नूरुलैन नासिर, कुरातुलैन, No question, sir. राबिया इफ्तिखार, सबात उरूज, सदफ इकबाल, No question, sir. सामिया आसिफ, No question, sir. समरीना दिलदार, सानिया अकरम, No question, sir. शनीला रफ़ीक, No question, sir.
शाइस्ता कंवर, No question, sir. सुमेरा शुएब, No question, sir. तरीम सादिक, No questions. तोकीर हुसैन, No question, sir. जैन मरियम. No question, sir. अच्छा, अभी so far we have talked about 3 topics related to communication skills. First was related to introduction to communication, second was related to the components of communication, and third was related to the forms of communication. So now we'll be having a quick recap on these 3 topics in future. ठीक है, अगली जो